हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. Applications of derivatives, there are 6 parts of this chapter: tangent and normals to the curve, derivative as a rate measure, approximation, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, increasing and decreasing functions, maxima and minima. Now, because of this present problem, because of COVID-19, the approximation part and Rolle's theorem part has been discontinued in the syllabus of Maharashtra. So let us first start tangents and normals to the curve. Now, before we start tangents and normals part as the application of derivative, हम लोग थोड़ा straight line revision करेंगे. चलो, first degree equation in x and y represent the straight line on the graph. समझ गए इतना? तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कैसे रहते हैं? ax plus by plus c equal to 0. Means if you take the example, it will be like 2x plus 3y minus 7 equal to 0. या x और y का डिग्री 1 रहता है. अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है. ये जो काला दिखाया है मैंने, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2. तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग, इज tan ऑफ थीटा. Theta is the angle, this angle, which is done by straight line with positive direction of x-axis. It is always measured in anti-clockwise direction. ये ऐसा एंगल उल्टा नहीं लेने का. So tan of that angle is known as slope, and it is given by, if you know the 2 points on the straight line, this is the formula for the tan or the slope of the straight line. समझ गए बच्चों? चलो. Now straight line has various forms of equation. अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन होते हैं. तो पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. मतलब हमें स्लोप मालूम है, विच इज tan ऑफ दिस एंगल थीटा, एंड y इंटरसेप्ट मालूम है, विच इज दिस c. ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां कट करता है, ये पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज c. तो ये इक्वेशन हमें कैसा मिलता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. याद रखो, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर कोई लाइन ऐसा है, ओरिजिन से जा रहा है, तो c कितना हो गया? 0. तो इक्वेशन बिकम्स y is equal to mx because c is 0. And the same thing can be expressed at ax plus by is equal to 0. Then if you know a point on a straight line which is x1 y1, and if you know tan of this angle, means you know theta and you know m, that's why. तो हमें इक्वेशन कैसा मिलता है? y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1, where m is the slope of a line which is given
and x1 y1 is a point on the line. This is very important in this chapter of tangents and normals. If you know 2 points like x1 y1 and x2 y2, you can use the same form of equation, only you have to calculate m. ये m हमें फॉर्मूला मालूम है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फिर यहां m डाल के हमें ये इक्वेशन मिल सकता है. टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. तो अभी तक जितना मैंने बताया उतना याद रखिए, वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से देखिए, नोट डाउन कीजिए. व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व? अभी ये देखिए, दिस इज वन कर्व y is equal to fx. Now P is a point on this curve. दिखला? This is a tangent to the curve. ये tangent मतलब ये पॉइंट P में इसको टच करता है, ऐसा कट नहीं करता है, टच करके जाता है. Now this tangent is having slope m1. Now how this slope we get from the equation of the curve? We just find derivative y dash or f dash x, both are same at point x1 y1. तो ये हमें कर्व का टेंजेंट जो है उसका स्लोप मिलता है. एंड व्हाट इज नॉर्मल बच्चों? नॉर्मल मीन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट P a line is drawn perpendicular to the tangent. तो ये देखो, ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया है, दिस इज नॉर्मल. ये क्या है बच्चों लाइन? दिस इज टेंजेंट. एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज यूजुअली डिनोटेड बाय m2. समझ गए? तो हमें क्या मालूम है? अभी देखिए, पॉइंट मालूम है x1 y1 एंड स्लोप मालूम है. तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसा मिलेगा हमको? y माइनस y1 इंटू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1. तो यहां m1 डालेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट का इक्वेशन. m2 डालेंगे तो हमको मिलेगा नॉर्मल का इक्वेशन. और ये बच्चों आपको मालूम होना मांगता है कि बिकॉज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 विल बी -1. तो यहां m1 डालेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन, m2 डालेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन. समझ गए बच्चों? वेरी गुड. चलो अभी एक एग्जांपल करेंगे. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x square plus 4x plus 1 and at point 1 2 on this. मतलब क्या है? ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया है x square plus 4x plus 1. ये पॉइंट दिया है उसके ऊपर -1 -2. ये हो गया टेंजेंट, उसका स्लोप है m1. ये हो गया नॉर्मल, उसका स्लोप है m2. तो हमें m1 और m2 निकालना है. कैसा निकालेंगे बच्चों? देखो, y इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1. तो dy बाई dx मतलब f डैश x is derivative of x square with respect to x plus 4 times derivative of x with respect to x plus ये लास्ट में क्या है बच्चों? derivative of 1 with respect to x. तो हमें dy by dx मिला 2x plus 4 प्लस बच्चों ये 1 सेपरेट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आता है 0. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट m1 दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. कैसा मिलेगा? dy बाय dx एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? -1 -2 -1 -2. तो ये क्या हो जाएगा?
2 इंटू ब्रैकेट x की कीमत है -1, y तो डालने की जरूरत नहीं, y है ही नहीं, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2 m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल is 1 upon -1 upon m1 because m1 m2 is -1, तो ये हमें मिल गया -1/2। समझ गए बच्चों? तो अभी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ये दोनों निकालना है। कैसा निकालेंगे? टेंजेंट y minus y1 is equal to m1 into bracket x minus x1, तो y minus y1 कितना है? -2 is equal to m1 कितना निकाला हमने? 2 into bracket x minus x1 कितना है? -1। अगर ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y plus 2। चलो अगले पेज पे जाएंगे। y plus 2 is equal to 2 into bracket x plus 1, तो ये हो गया y plus 2 is equal to 2x plus 2, तो ये 2 उड़ गया, तो ये हो गया 2x minus y equal to 0। ये हो गई हमारी टेंजेंट। और नॉर्मल कैसे होगी? y minus y1 is equal to m2 into bracket x minus x1, तो y minus -2 is equal to, हमने m2 कितना निकाला था बच्चों? -1/2 into bracket x minus -1, तो y plus 2 is equal to -1/2 into bracket x plus 1, तो मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होएगा? 2y plus 4 is equal to -x minus 1, तो ये सब एक बाजू लाएंगे, x plus 2y plus 5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ गए बच्चों? ये समझा के ले लो। देन वी विल टेक इन अनदर वीडियो 2 मोर कॉम्प्लिकेटेड प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। थैंक यू बच्चों।